Good morning, all. We have seen what is a Turing machine and also designed a Turing machine for a small example, that is a to the power n, and whether number of a's is even or odd. So continuing to this designing of Turing machine, let's design a Turing machine with a much more complex thing, a step forward in designing of Turing machine. So let's take an example where we say that a Turing machine accepting the strings made of a to the power n and b to the power n, where n is greater than equal to 1. That is, minimum number of 1a and 1b is required, n is greater than equal to 1. This type of string can be accepted by a push-down automata also, and it can be accepted by a Turing machine also. Turing machine is a much powerful machine, so if a string accepted by push-down automata, it can easily be accepted by a Turing machine. We have to see that how can we design such a Turing machine which is accepting this type of string. Remember, for designing a Turing machine, there is no step-by-step method. It always comes with the help of your experience, with the help of your practice. So the knowledge which we have gained for finite state automata, which we have gained for push-down automata, is used for designing of a Turing machine. And whenever we design a Turing machine, it is a complex problem. So we do not see for the ultimate that whether it is an accurate machine or not. A finite state machine is an accurate or not. Turing machine may not be a complete Turing machine. We have to solve it that whether it is accepting the strings given in question or not. And if it is not accepting an exceptional part, then it should give an error message or it should halt. But the strings which are in the question, that should be accepted. That is something which is very much to be remembered in case of a Turing machine, that it is a much more complicated designing as compared to push-down automata or a finite state automata. So how to design it? Just to make it more simple, we will begin it by taking a tape. We know that in a Turing machine there is an infinite tape. So let's draw the tape which have blank symbols. So let's say that at the left there is blank symbols, and then we will take an input. So we take an input with n equals to 3. Just for our practice, we are taking an input n equals to 3. So for a comes 3 times and then b comes 3 times and then there is a blank. We do the designing as if we are drawing the state diagram. So initially we say that to start a machine we require an input. This is our input, a to the power 3 and b to the power 3. Then we require the state. So we say that the starting state is q0. We say that the starting state is q0. So the read write head, it can move either to left or it can move either to right. It is pointing on a and the state is q0. Now on q0 we get a. On q0 we get a, so we make a transition that on q0 we are getting a. On q0 we get a. Now what to do with this a? There is no method by which we can say that we can compare the number of a's and number of b's. We have to see that number of a's followed by equal number of b's. This is what this thing is कि a आए तो आगे बढ़ते रहो और b आए फिर आगे बढ़ते रहो और काउंट करो कि इक्वल a's आए और इक्वल b's आए. तो अब हम कैसे काउंट करें? कोई इसमें मेमोरी नहीं है जैसे पुश-डाउन ऑटोमेटा में स्टैक था, पर विदाउट मेमोरी इट इज गिवन अ पावर कि इसमें हम राइट कर सकते हैं टेप पर. तो हमने जिस सिंबल को पढ़ा हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो उसी पावर का हम यूज़ करेंगे कि हमने एक ए एनकाउंटर कर लिया, उस ए को चेंज कर देंगे, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बी को रीड करेंगे, उसे चेंज कर देंगे. एक ए से एक बी कैंसिल हो गया, फिर दूसरे ए से दूसरा बी कैंसिल करेंगे, तीसरे बी से तीसरा बी कैंसिल करेंगे. अगर इक्वल कैंसिलेशन हो गया कि ना ए बचा ना बी बचा, इक्वल होगा तभी कैंसिल होगा. इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज, तभी हम कैंसिल करेंगे. अगर हम कैंसिल कर पा रहे हैं, स्ट्रिंग नहीं बचती है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और डिज़ाइन हो गई ट्यूरिंग मशीन. तो कैंसिल करने के लिए हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि जैसे ही हमने Q0 पर A मिले, Q0 यानी स्टार्टिंग स्टेट पर जब हमें A मिले, जैसी मशीन स्टार्ट हो रही है हम मशीन को बार बार स्टार्ट करेंगे. जैसी मशीन स्टार्ट होगी हम कहेंगे A अगर हमें मशीन की स्टार्टिंग में मिलता है, उस A को हम कैंसिल कर देंगे, X से रिप्लेस कर देंगे फॉर एग्जाम्पल, और आगे बढ़ जाएंगे. आगे बढ़ जाएंगे का मतलब हुआ राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो AXR का मतलब क्या है? इस A को हमने कैंसिल करके X बना दिया. तो मैं यहाँ पे काट के इसे x लिख देता हूँ. इस a को हमने कैंसिल करके x बना दिया और हम आगे बढ़ गए.
राइट की तरफ मूव हो गए। अब राइट की तरफ जब हम मूव हो तो हमें ध्यान रखना है, हमें ए को तभी कैंसिल करना है जब मशीन स्टार्ट हो रही है। तो मशीन स्टार्ट कब होगी? जब वो स्टार्टिंग स्टेट पर होगी Q0 पर। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें फिर से ए मिल जाएगा। अब हमें इस ए को नहीं काटना है, तो इस ए को नहीं काटना है। कैसे बचाएं काटने से? हम स्टेट चेंज कर देते हैं। हमने क्या करा, हम राइट पे तो बढ़ेंगे, ए को रीड करेंगे, पर स्टेट चेंज कर दी ताकि इस ए को ना काटे। क्योंकि कब काटेंगे? जब स्टार्टिंग हो रही है मशीन की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बी को क्रॉस करेंगे। उस बी को जब क्रॉस कर देंगे फिर सेकंड ए को क्रॉस करेंगे। तो इस ए को कटिंग से बचाने के लिए हमने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। ये हमें सोचना है कि हमने इस एक स्टेट को क्यों चेंज करा, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू कैंसिल दिस ए। तो हमने इस स्टेट को चेंज कर दिया Q1। अब Q1 पर ए आए, सो लेट्स से दैट ए इज कमिंग, लेट अस रीड, कीप ऑन रीडिंग द नंबर ऑफ एज विच आर कमिंग ऑन Q1 unless and until we get the first B, because now for corresponding A we have to get corresponding B। एक A कैंसिल करा है तो अब हमें B चाहिए। So we do not do any change for the state, we keep on moving कि A आ रहा है, let this A remain A, A comma A means A पे A ही रहने दो और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, राइट पे मूव होते रहो। सो राइट पे मूव होते रहे हम यहाँ पे पहुँच गए, स्टेट Q1 ही रही, है ना। अब जैसे ही हम यहाँ पहुँचे राइट पे मूव होके, अब हमें क्या मिल गया? B मिल गया। अब Q1 पर जब B मिल जाए तब क्या करें? Q1 पर जब B मिल जाए तब क्या करें? क्योंकि अब हमें B मिल गया है। अब Q0 पर A कैंसिल करा था, Q1 पर B मिलते सारी अब हमें एक B को रिमूव करना है, एक A के कॉरस्पॉन्डिंग। तो Q1 पर B मिला तो हमने इस B को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के लिए A को X से रिमूव करा था, B को किसी और सिंबल से रिमूव कर देते हैं। तो B को हमने कहा B को Y से रिमूव कर देते हैं। इस B की जगह पर क्या डाल दिया? Y डाल दिया। इस B की जगह पर Y डाल दिया। तो Q1 पर जैसी B मिला उस B को रिप्लेस कर दिया हमने Y से, और स्टेट चेंज कर देते हैं ताकि हमें याद हो जाए कि हमने एक B को रिप्लेस करा है, वो तो Y से रिप्लेस हो गया। अब दूसरी स्टेट पर चले जाते हैं। अब हमने स्टेट क्यों चेंज करी? क्योंकि हम जब भी कुछ कैंसिल कर रहे हैं तो हम एक रूल बना लें कि अगर हमने कुछ भी राइट कर रहे हैं तो हम एक नई स्टेट पर पहुंच गए, है ना। हम एक नई स्टेट पर पहुंच गए ताकि हमें पता चल जाए कि आगे हमें क्या करना है। और राइट पर हम बढ़ गए और हम Q2 पर पहुंच गए। अब हमारी स्टेट हो गई, देखो दोस्तों क्या हो गई, हमारे यहाँ स्टेट हो गई Q2, है ना। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव रीच्ड नाउ इज Q2। अब Q2 पे हमें क्या मिल रहा था, है ना। Q1 पर हमें B मिला, B को हमने चेंज कर दिया Y से और राइट की तरफ बढ़ गए। तो राइट की तरफ अगर हम Q1 पर B मिला, राइट की तरफ बढ़ेंगे तो Q2 पर B मिलेगा। सॉरी, राइट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि इसको जैसे हमने स्कैन कर लिया, इसको जैसे हमने स्कैन कर लिया, है ना। Q1 पर B मिला, इसको जैसे हमने स्कैन कर लिया, Q1 पर B मिला, B को हमने Y कर दिया, इसको जैसे ही हमने स्कैन कर लिया। अब हमें वापस जाना है दूसरे A को ढूंढने, तो हमने रिवर्स जाना शुरू करा, हमने रिवर्स जाना शुरू करा। अब हमने क्या करा? रिवर्स जाना शुरू करा, उल्टे डायरेक्शन में जाना शुरू करा। तो अब हमारी टेप को यहाँ बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इस A को हम X से रिप्लेस कर चुके हैं, ये 2 A हो चुके हैं, एक ये Y हो चुका है, 2 B बचे हैं और बाकी ब्लैंक 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 तो है ही। हम करंटली यहाँ पर थे, इस B को हमने Y कर दिया, Q1 पर हमें B मिला, Q1 को पे जैसे ही हमने B मिला तो हमने इस B को Y कर दिया और मूव कर दे लेफ्ट की तरफ और स्टेट कर दी Q2। अब हम लेफ्ट की तरफ क्यों मूव करा? क्योंकि हमने कहा हमने एक A के लिए एक B चेंज कर दिया है, अब हमें वापस A ढूंढने हैं, वापस A ढूंढने हैं। कौन सा A ढूंढना है हमें वापस? जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हो। बिल्कुल स्टार्टिंग में कौन सा होगा? जो X के पास है। तो जितने भी A मिलते रहे उन्हें बिना रिप्लेस करे रीड करते रहो और लेफ्ट की तरफ बढ़ते रहो। इस A को A ही रहने दो और लेफ्ट की तरफ बढ़ जाओ। बढ़ गए, लेफ्ट की तरफ बढ़ते रहो। क्यों बढ़ रहे हैं हम लेफ्ट की तरफ? क्योंकि हमें ढूंढना है कि मशीन स्टार्ट कब दोबारा होगी, कब दोबारा स्टार्ट होगी? जब हमें X मिलेगा, है ना। तो अब जैसे ही हमें Q2 पर X मिले, Q2 पर जैसे ही हमें X मिले, अब हम यहाँ पहुँचे तो Q2 पे हमें क्या मिल गया? X मिल गया। तो हमें पता चल गया कि अब हमें मशीन को दोबारा स्टार्ट करना है, फिर से उसी साइकिल से गुजारना है। तो फिर से उसी साइकिल से गुजारने के लिए हमने क्या करा कि जैसे ही X मिला हमने मशीन को फिर से स्टार्टिंग स्टेट पे पहुंचा दिया। X को हमने छेड़ा नहीं, X ही रहा और मशीन को हमने दोबारा स्टार्टिंग स्टेट पे पहुंचा दिया।
और हमने कहा फिर से मशीन आगे बढ़नी शुरू हो जाए। तो Q2 पे x मिलने के बाद हमने कहा मशीन फिर से आगे बढ़नी शुरू हो जाए और x ही रहे और स्टेट हो जाए Q0। तो अब हमारी स्टेट कैसे हो गई, अब हम यहाँ पर अगर टेप को बनाएं, x हो गई, इनपुट अभी वही है, इनपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, एक छोटा सा चेंज हुआ है, एक A रीड हुआ है, एक B रीड हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे ही Q2 पर x मिला, Q2 पर x मिला, हमने कहा x ही रहेगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और स्टेट हो जाएगी Q0। नाउ फ्रेंड्स सी, नाउ एज सून एज वी रीच एट दिस स्टेट, हम फिर से स्टार्टिंग स्टेट पर आ गए, Q0 पर A मिला। अब स्टार्टिंग स्टेट पर अगर A मिलेगा तो हमारी मशीन को, VR मशीन हैज ऑलरेडी रिटन दिस थिंग, व्हाट द मशीन हैज टू डू, इट हैज टू रिप्लेस दिस A विद X एंड मूव फॉरवर्ड एंड चेंज द स्टेट टू Q1। स्टेट चेंज कर दी Q1 पर। अब Q1 पर A मिला, उसने कहा कुछ नहीं करना है, A को A रहने दो, मूव फॉरवर्ड। अब Q1 पर Y मिला। नाउ ओवर हेयर वी सी अ न्यू थिंग हैज हैपेंड। अभी तक Q1 पर Y नहीं मिला था, अभी तक क्या मिल रहा था, Q1 पर B मिल रहा था। नाउ Q1 हैज एनकाउंटर्ड अ न्यू सिंबल दैट इज Y। अब हमें तो क्या चाहिए, Q1 पर हमें B चाहिए। अब हम अगर बीच में Y मिल गया, इसका मतलब एक X के कॉरस्पॉन्डिंग एक Y आ चुका है, पर हमें उसमें कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, Q1 पर अगर Y मिलेगा तो हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, Y को Y ही रहने देंगे और अपना आगे बढ़ते रहेंगे बिना किसी परेशानी के। Y को Y ही रहने दिया और आगे बढ़ते चले गए और राइट पे मूव हो गए। फिर Q1 पर B मिल गया। जैसी Q1 पर B मिला, हमें पता है हमें इस B का क्या करना है, हमें इस B को काट के Y बनाना है और अपनी स्टेट Q2 कर ले रही हैं और मूव कहाँ हो जाना है, लेफ्ट की तरफ हो जाना है। तो Q2 Y L। अब हमारा टेप किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। इस टेप को बनाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू विल मेक दिस टेप देन ओनली वी विल कम टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग। नाउ सी व्हाट हैपेंस, 2 X चेंज हो चुके हैं, 2 B चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर जैसी हमें Q1 पर Y मिला था, Q1 पर B मिला था, तो हमने क्या कर दिया था, Q1 पर B मिला, इस B को हमने Y में चेंज कर दिया, इस B को हमने Y में चेंज कर दिया और लेफ़्ट की तरफ मूव हो गए और स्टेट कर दी हमने Q2। अब Q2 पे क्या मिल गया, हमें Y मिल गया। इससे पहले जब हम लौट रहे थे हमें Q2 पे क्या मिल रहा था, A मिल रहा था। अब Q2 पे हमें Y मिल गया। ये Y कौन सा है, जिसको थोड़ी देर पहले हमने B में बदला था। तो मशीन को क्या करना है, ये तो हमारा ये वाला है B है, इसे हमने ही बदला है, इसे इग्नोर करके आगे चलते रहो जब तक X नहीं मिलता। तो इसे इग्नोर करके आगे चलते रहे जब तक X नहीं मिलता। अब X कहाँ पर मिलना चाहिए, लेफ्ट में, तो आगे चलते रहे। फिर Q2 पर A मिला, हमने ऑलरेडी लिखा है AAL, फिर से आगे चलते रहे। अब यहाँ पर जैसे हम पहुँचे तो हमें क्या हुआ, Q2 पर X मिल गया। तो हमें पता है Q2 पर X मिलना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मशीन को दोबारा स्टार्ट करना है। मशीन को दोबारा स्टार्ट करने का मतलब वापस हम स्टार्टिंग स्टेट पे पहुँच जाएंगे, Q0 पर पहुँच जाएंगे, इस X को X रहने देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब हम राइट की तरफ बढ़ गए। जैसे ही हम राइट की तरफ बढ़े तो हमारे साथ मशीन ने फिर से वही स्टार्टिंग स्टेट पर पहुंच गया, Q0 पर A मिल रहा है। अब Q0 पर A मिलने पे तो हमें पहले से डिफाइंड है, हमें क्या करना है, Q0 AXR, यानी इस A को X से रिपीट कर देना है और राइट की तरफ बढ़ते रहना है। अब जैसे ही राइट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी स्टेट कौन सी चेंज हो गई, Q1 हो गई। Q1 पर Y आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, YYR हम ऑलरेडी ये स्टेट हम बना चुके हैं, YYR यहाँ पे देखिए लिखा है, YYR चलता रहा। Q1 पर B आया, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, B को हम क्या कर देंगे, Y से रिप्लेस कर देंगे और स्टेट किस में चेंज कर देंगे, Q2 में चेंज कर देंगे। स्टेट Q2 पर चेंज करने के बाद हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे, Q2 YL देखिए लेफ़्ट की तरफ बढ़ते रहे, ये Y आ गया, फिर Q2 पर X आ गया। अब इस Q2 पर क्या आ गया, X आ गया। फिर हमने कहा कि अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, Q2 पर अगर X आ रहा है, X को X रहने दो, स्टार्टिंग स्टेट चेंज कर दो Q0 और राइट की तरफ बढ़ जाओ। अब जैसे ही हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो सी दिस थिंग हैपेंस। अब स्टेट हो गई Q0, ये हमारा, अगर टेप को ड्रॉ करें तो अब हम टेप में ये पहुंच गया, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, ये मूव हमने अभी तक नहीं देखा है और यहीं से हमारा कंप्लीशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सी व्हाट हैपेंस, अब हमारी मशीन क्या हो गई, ये हो गई। Q2 पर जैसी X आया, उसने क्या करा, X को X रहने दिया, राइट की तरफ बढ़ गया और स्टेट कर दी Q0।
राइट की तरफ बढ़ते सारी क्या आ गई, स्टेट हो गई Q0 और इनपुट क्या मिल गया उसे y। Q0 पर अभी तक सिर्फ एक इनपुट मिल रहा था A, अब इनपुट मिला y। तो व्हेन वी गेट एन इनपुट ऑन स्टार्टिंग y, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने मशीन स्टार्ट कर रहे हैं और इनपुट मिल रहा है हमें y, यानी कि सारे A खत्म हो चुके हैं और A खत्म होकर X बन चुके हैं, तभी हम वापस स्टार्टिंग स्टेट पर पहुंचे। अब A कोई बचा नहीं है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई B बच गया है, हो सकता है कोई B बच गया हो। तो इक्वल नंबर ऑफ A's थे और इक्वल नंबर ऑफ B's थे, ये हमें कब पता चलेगा कि A भी खत्म हो गए और B भी खत्म हो गए, क्योंकि एक A के लिए एक B काट रह गया हमारी मशीन। अब B खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए ये हम कैसे पता चलें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई स्टेट पर पहुंच जाते हैं कि Q0 पर अगर Y मिले तो एक नई स्टेट पे पहुंच जाइए, उसे Q3 बोल देते हैं और आगे बढ़ते रहो जब तक Y मिलता रहता है। तो हम आगे बढ़ते रहते हैं Q3 करते हुए जब तक Y मिलता रहा, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। अब अगर कोई भी बीच में B मिल जाता है तो इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ A's और इक्वल नंबर ऑफ B's नहीं थे, तो मशीन क्या करेगी, एरर दे देगी, हॉल्ट नहीं होगी, है ना, मशीन एरर दे देगी अगर हमें कोई भी B मिल जाता है। और अगर Q3 पर हमें कोई B नहीं मिला, हमें फाइनली ब्लैंक मिल गया, हमें Q3 पर ब्लैंक मिल जाए, हमें Q3 पर ब्लैंक मिल जाए, तो हम समझ जाएं कि यानी अब सारे A भी खत्म हो चुके हैं, इक्वल नंबर ऑफ B's भी आ चुका है, हम ब्लैंक का ब्लैंक रखें, राइट मूव करें या लेफ्ट मूव करें और हम कहें कि हम फाइनल स्टेट पर पहुंच गए और मशीन फाइनली हॉल्ट हो गई। तो अगर हमें Q3 पर ब्लैंक मिलता है, देन ओनली वी से दैट मशीन हैज़ रीच्ड टू द फाइनल स्टेट, अगर हमें Q3 पर ब्लैंक मिला। तो ये जो अभी हमने फिगर बनाया, इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि मशीन हैज़ रीच्ड टू द फाइनल स्टेट। इसी ट्यूरिंग मशीन को हम ट्रांजिशन डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है कि Q0 पे क्या हो रहा है, Q1 पे कैसे हो रहा है, Q2 पे कैसे हो रहा है। इसी चीज़ को जब हम ट्रांजिशन डायग्राम बोलेंगे, ये डायग्राम हो गया, एक ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। तो ये पुश डाउन ट्यूरिंग मशीन की डिज़ाइनिंग हमारी फुलफिल हो जाएगी ट्यूरिंग मशीन की। अगर इसका अब हम टेबल बनाएं, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस कर देते हैं, तो टेबल कैसा बनेगा अभी देख लेते हैं इसे टेबल को बना के। तो फाइनली जो मशीन एक्सेप्ट हुई वो किसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए या जितनी भी वो करी है, तो हमें ऐसा नहीं हुआ कि इतना लंबा टाइम लगाओ डिज़ाइनिंग करने में, पर ये डिज़ाइनिंग थोड़ी सी एक लेंदी प्रोसेस है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन डिज़ाइनिंग दिस। तो जब इसका टेबल बनेगा तो कैसा बनेगा, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स लिख लीजिए, Q0, Q1, Q2, Q3, QF। इनपुट सिंबल्स हमारे पास क्या थे भाई, A था, B था, X था, Y था। Q0 पर जब A आ रहा है तो स्टेट क्या हो जा रही है, Q1। इनपुट में क्या चेंज हो जा रहा है, X, और कहाँ पे मूव हो रहे हैं, राइट पे। Q0 पर जब B आ रहा है तो कोई हमने उस पर मूव नहीं करा, Q0 पर हमने B के लिए कोई मूव नहीं करा। Q0 पर जब X आ रहा है तो हमने कोई मूव नहीं करा। Q0 पर जब Y आ रहा है तब हमने मूव करा कि स्टेट हो गई Q3, Y का Y रहा और राइट मूव हो गया। इसी तरह Q1 पर जब A आ रहा है तो स्टेट रही Q1, A का A ही रहा और राइट की तरफ मूव हो गए। Q1 पर जब B आया तो स्टेट हमने चेंज कर दी Q2, B को Y से चेंज कर दिया और लेफ्ट में मूव हो गए। इस टाइप से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं और पूरा एक ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ द डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज डन। बट रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, देर आर n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कुछ सॉल्यूशंस में आपको मिलेगा कि A को हम X से रिप्लेस करने की जगह A को हम ब्लैंक सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं, और एक A को रिप्लेस करा, उसके बाद फर्स्ट B को रिप्लेस करा, ऐसा भी मिलेगा। जैसे अभी हमने एक A के बाद एक B को रिप्लेस करा, कुछ में लास्ट B को रिप्लेस करेंगे। तो देर आर different type of solutions. You can take any type of solutions. All solutions are good as long as it is accepting the string which is there in question. Thank you.